Today we're going to discuss pattern loading for live load and influence line diagram. In fact, you're familiar with influence line diagram, but today we will see how we apply these concepts of influence line diagram. Whenever you are designing a continuous beam, it is possible that at some times in service of that beam, some part of it is loaded while others is not. And there is also a possibility that the entire spans, all spans of the beam are loaded. In order to determine the maximum moment at a given section, maybe a midspan section or over a support, the maximum moment that is developed at that particular section is not produced when the whole of the spans are loaded, when the entire beam is loaded, all spans loaded. The maximum moment is not produced in that case. Rather, there is a certain arrangement of load. When that is applied, it produces maximum moment more than when all of the spans are loaded. How do you see this concept in a simple diagram? If you consider this beam consisting of these two spans, AD and DF. Now, if you want to see the variation of bending moment at one particular section as you move the load along the span of the beam. What I mean is, if I consider, for example, a unit load and I place it along different locations on this beam, and every time I calculate the moment produced at C. For example, starting from A, I place a unit load over here and I determine moment at C. That answer will be plotted over here. We are plotting ILD for moment at C. Similarly, next time I place my unit load over here and again I determine moment at C. That answer will be plotted right over here where the unit load was applied. Similarly, I'll complete this diagram by successively changing the position of the unit load and every time finding moment at C. So when you do this practice, what you see, this is what we have obtained after this detailed analysis. Alright. Now what do you see over here? When the unit load is applied, when the load is applied anywhere between A and D, it produces a positive moment at C. Whereas when you apply the load anywhere between D and F, it produces a negative moment at C. Now, if you wanted to determine maximum positive moment at C, then the arrangement that would give you maximum positive moment at C would consist of loading all points between A and D and keeping this D and F unloaded. Why? Because load applied in this region would produce a negative moment at C and it will reduce the effect of loading that is applied between A and D, which is creating positive moment at C. Alright? So, this is the figures that you see over here. This figure C, figure D and figure E explain what I have already discussed. What does it mean? Let me elaborate this. When this consists of obtaining this diagram, these three figures are explaining you how to obtain this ILD. For example, if I want to obtain this ordinate of ILD, I'll be placing load at B, just as you can see over here, and finding this moment at C. Now this answer, MC due to unit load at B 1.93 kip foot, this is your ordinate over here. Similarly, if I want to know the ordinate at C for this ILD, I would place unit load at C and determine moment at C. This answer will be plotted over here. Similarly, for E, I'll place the unit load at E and again determine moment at C. This time I'll getting a negative answer, and that's why you see a negative ordinate over here. What I want to stress is all these ordinates are telling you moment at one section, C, point C.
All right. So can somebody tell me the difference between ILD and bending moment diagram? Bending moment diagram, in case of bending moment diagram, a fixed loading is given and you determine bending moment due to that fixed moment at different locations at beam. You cut different sections in the beam, determine moments over there, and then you plot those moments. So you get to know that bending moment diagram tells you for that loading how much moment would be produced at this section, the next section, and so on. In case of ILD, you only have the beam dimension, the beam span, and ILD is always drawn for, if we are talking about moment, it is always drawn for moment at one particular section. And how does the variation arise? The variation arises when you change the location of unit load along the span of the beam at different locations. All right. It means for designing one continuous beam, you have to perform a number of analysis. For example, for MC, for designing mid-span section of this span, you need to load this region. Now, when you say loading pattern, it applies to live load only, because dead load is something that will exist, that will keep on applying for the entire span of entire life of the beam. Live load is something that may or may not exist. So when we are discussing loading pattern, it actually applies to live load. Dead load will remain there for the entire span of the beams. All right. So yes, we will see similar ILDs for other sections. Right now, I want to now this topic, how to draw ILD, is, I mean, not something I should be teaching you in this course, because I hope you remember at least some part of what you learned in structural analysis. Also in elementary structural analysis, we have been through this topic. So I expect you to go back and just try to read that heading, Muller-Breslau principle. I want you to go and read that. All right. I don't have time to spend on this topic, but just a quick recall. Just a quick recall. If you want to find qualitative, just shape, because most of the times you will be only interested in shape. For pattern loading, all you need to know is the shape of ILD, not the exact ordinates, because you just want to see which portion should be loaded and which should be kept unloaded. Now for moment, the procedure is, for example, for MC, ILD for MC, you will break the beam at C. By breaking, I mean remove the ability of the beam to resist moment at that point, at point C. It actually means, physically it would mean insert internal hinge at that point. So, and after that apply a positive, unit positive moment to that, at that section. For example, in this case, not a unit moment, MC has been applied. You could apply a unit couple instead of MC. So sagging इस तरफ भी apply किया, इस तरफ भी apply किया, and the deflected shape of this beam is the qualitative shape of your ILD. Just see the similarity between this ILD and the deflected shape after these manipulations. So the detail is in your previous course, all right? So पॉजिटिव मोमेंट अप्लाई किया, MC जिसको अप्लाई किया यहाँ पे, ये सैगिंग इस तरह लगेगा इस सेक्शन के ऊपर, और सैगिंग इस साइड के ऊपर इस तरह से लगेगा. अब ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा और ये इसको इसी तरह से ऊपर से उठाने की कोशिश करेगा. अब यहां से तो ये उठ जाएगा, लेकिन अगले स्पैन में ये फिर, चूंकि यहां से हमने बांधा हुआ है यानी सपोर्ट किया हुआ है, तो ये नीचे डिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. सो इससे आपकी ऊपर वाली शेप बन जाएगी.
अच्छा, let's look at few more examples. For example, you have this continuous beam, and you want to find maximum the loading pattern for moment at B. So the procedure is simple. आप इसको यहाँ पे काट दें, हिंज इंट्रोड्यूस कर दें, और उसके बाद यूनिट कपल अप्लाई कर दें. ये इसको ऊपर उठाएगा, ये इसको भी ऊपर उठाएगा, ये ऊपर उठेगा, साथ वाला नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर सो ऑन. अच्छा, ये इसकी ILD की क्वालिटेटिव. You see how powerful this tool is. Qualitative influence line diagram. Without, just looking at the beam, you can know how should I load this beam so can I get maximum moment at this point. So this is ILD, qualitative, although qualitative ILD for moment at B. Now looking at this ILD, you will decide which spans should be loaded and which should be kept unloaded. Here you see, you have a positive ordinate. It means whenever you apply loading in this region, the moment at B is a positive answer. So you will be loading this, and this is negative. And since we are finding we are finding maximum moment at B, so this negative region should be avoided, unloaded. Then this should be loaded. Then this should be kept unloaded. Then this should be loaded. In fact, this is something that applies to every mid-span section. This was a mid-span section of this first span. Mid-span section, for mid-span section, जिस स्पैन के अंदर वो मिड है, वो किसी स्पैन के अंदर मिड होगा ना, मिड स्पैन सेक्शन, उस स्पैन को आपने लोड करना है, फिर अगला अनलोडेड छोड़ना है, फिर लोड करना है, फिर अनलोडेड, फिर सो ऑन. इसको हम कहते हैं अल्टरनेट लोडिंग या चेकर बोर्ड लोडिंग. मैं लिख लेता हूं, अल्टरनेट स्पैन लोडिंग. ठीक है, अल्टरनेट स्पैन और चेकर बोर्ड. ये आप अप्लाई करेंगे. नाउ व्हाट डज इट मीन? This time we were looking for maximum moment, maximum positive moment at B. So we loaded this span, then we left it unloaded, loaded, unloaded, loaded. If we were to find maximum moment loading pattern for B, mid-span of this second segment, you would load this part, this span, this would be unloaded, this would be also unloaded, this would be, मुझे भूल गया, loaded, unloaded, loaded, unloaded. Opposite to this. And then for maybe like F section, section F, you will load this part, unloaded, loaded. ठीक है, ये loaded था, ये unloaded, loaded. ये वही अरेंजमेंट बन जाएगी जो B के लिए बनी हुई है. नहीं, सारों को लोड करेंगे तो कुछ रीजन जो है ना वो उस पॉजिटिव मोमेंट को कैंसिल आउट कर रहेंगे बाय प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव मोमेंट. मतलब आप यहां जितना जोर लगाएंगे ना, यहाँ पे आप इधर तो उसको सैग कर रहे हैं, लेकिन साथ वाले को आप ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉग कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यूटी की वजह से. ठीक है, ओके. इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, कि मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट, मसलन आपके 100 स्पैन्स है, 100 स्पैन्स के अंदर हर स्पैन का जो मिड स्पैन है ना, पॉजिटिव मोमेंट आपको चाहिए, उसके लिए आप इस सारे 100 स्पैन्स वाले बीम के लिए भी सिर्फ 2 लोडिंग अरेंजमेंट अनफ है. पॉजिटिव मोमेंट की बात कर रहा हूं मिड स्पैन्स के लिए. एक केस में मसलन पहले वाले को लोड किया, फिर अनलोडेड, सो ऑन, अगली दफा इन्वर्ट कर दिया. तो इस तरह से बस ये 2 लोडिंग अरेंजमेंट्स अनफ होंगी टू कवर, टू डिटरमिन मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट थ्रू आउट द बीम, पूरे सोर्स स्पैन के अंदर. ठीक हो गया, पॉजिटिव मोमेंट क्लियर हो गया. अच्छा, नेक्स्ट वी लुक एट नेक्स्ट नेगेटिव मोमेंट को क्या करेंगे. नाउ कंसीडर दिस बीम. फॉर एग्जाम्पल, you are interested in finding
arrangement for maximum negative moment at C. So you need ILD for moment at C. So the procedure is again simple. You will introduce an internal hinge at this beam, at this position at C. Now you see, although we have introduced an internal hinge, but we have got a support at this point, so this point will not be able to move up or down. Of course, the two the adjacent spans will be deflected, but that point itself will stay at its position because of the support. नहीं, सपोर्ट नहीं रिमूव करना, हमने ability of the beam to resist vertical shearing या vertical reaction नहीं हम हटा रहे, only ability of the beam to resist rotation हम खत्म कर रहे हैं. यानी इन दो को हम एक दूसरे के लिहाज से रोटेट होने की इजाजत दे रहे हैं, अब स्लाइड होने की इजाजत नहीं दे रहे. इवन ये हमने ऊपर भी किया था, ये पॉइंट सारा का सारा ऊपर गया है. ये ऐसे नहीं हुआ कि एक पार्ट इधर आ गया दूसरा उधर चला गया. अब हम शेयर पे जाएंगे तो वहां ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. इनका एंगल डिफरेंट हो जाएगा. इसका कोई और एंगल है. अच्छा, यहाँ पे आ जाए. अब हमने यहाँ पे अगेन वही पॉजिटिव मोमेंट्स इस पे भी अप्लाई किया, इसके ऊपर भी अप्लाई किया, और ये रिफ्लेक्टेड शेप आपके पास बन गई. ये दोनों नीचे जाएंगे. अब इसके बाद ये ऊपर उठेगा, ये नीचे, ये ऊपर. ठीक है. अब इसका यही इसकी ILD की शेप बन जाएगी. अब इसको देख पॉजिटिव मोमेंट अप्लाई करेंगे जी. यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे फिक्स बना हुआ नहीं है मोमेंट अप्लाई होता हुआ, लेकिन मैं ड्रॉ कर लेता हूं. इस वाले के ऊपर ये सैगिंग है ना, जरा लेफ्ट सेगमेंट को देखो, लेफ्ट सेगमेंट को, सॉरी, ये सैगिंग होके ये नीचे आया, यहां से सपोर्ट है तो ये ऐसे बन गई शक्ल. दूसरी साइड भी ये सिर्फ कंटिन्यूअस था, ये मसला आखिरी सपोर्ट है. इसके ऊपर भी यही ये सैगिंग बनेगा ना इसके लिए. अब ये यहां से भी नीचे नहीं जा सकता, यहां से भी नहीं जा सकता, तो ये ऐसी शक्ल बनेगी. ये जो आपको नजर आ रहा है ये मैंने बनाया वहां पे, और ये मैंने इसको बनाया. ओके. अब उसके बाद आपको ILD जब बन गई तो फिर तो लोडिंग अरेंजमेंट जस्ट उसको देखने से आपको पता चल जाएगी ना. ठीक है. मसलन इस केस में इस जगह पे नेगेटिव ऑर्डिनेट AC और CE के बीच में, नेगेटिव ऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि जब यूनिट लोड आप इन दो इस रीजन में कहीं भी अप्लाई करेंगे तो वो C के ऊपर कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव मोमेंट. इसका मतलब ये कि अगर मैं मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट C फाइंड करना चाह रहा हूं, सो आई शुड बी लोडिंग दीज रीजन्स AC एंड CE. अच्छा, उसके बाद देखिए जरा ये पॉजिटिव मोमेंट, इसका मतलब क्या, यहां लोड रखने से यहां जो मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो वो इसका मतलब है यहां लोड नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज वो इस वाले नेगेटिव मोमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. ओके. तो ये आपने अनलोडेड छोड़ दिया. नेक्स्ट, या फिर नेगेटिव, या फिर लोड, इसका मतलब लगाया जाएगा अगेन अनलोडेड, आखिरी वाला. इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी सपोर्ट पे आपको, सपोर्ट पे सारे नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस होता है, अगर आपने किसी सपोर्ट पे मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट निकालना है तो आपने, अब वो जो सपोर्ट है वो उससे इस तरफ भी स्पैन जा रहा होगा, इधर भी स्पैन जा रहा होगा. ठीक है. उन स्पैन्स को हम कहते हैं एडजेसेंट स्पैन. मसलन ये सपोर्ट है, इसका एडजेसेंट स्पैन कौन सा है, ये और ये AC और CE. अगर इस सपोर्ट की बात करूं तो इसका एडजेसेंट स्पैन कौन सा हुआ, ये और ये. हम इस वक्त C सपोर्ट की बात कर रहे हैं. C सपोर्ट पे मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट निकालने के लिए you will load the adjacent spans and then you will start applying alternate loading. क्या मतलब, ये दोनों लोड हो गए, अब इस तरफ आ गए अवे फ्रॉम दिस, सॉरी, इसको अनलोडेड, फिर लोडेड, फिर अनलोडेड. अगर आगे होता तो फिर आगे मैंने क्या करना था, लोड लगाना, फिर अनलोड, सो ऑन. अच्छा, अगर मैं इस सपोर्ट पे, अच्छा सॉरी, इस E वाले सपोर्ट पे निकालना चाहता, फिर क्या करता, CE और ये जो अगर EF मान ले उसको, तो ये वाले लोड्स कर लेता, और इसको क्या करता,
अनलोडेड। अच्छा, उसके बाद यहां पे अनलोडेड, यहां पे लोडेड। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस सपोर्ट पे करता फिर ये लोडेड, ये भी लोडेड, एडजेसेंट स्पैन लोडेड, अनलोडेड, लोडेड, अनलोडेड। अच्छा, थोड़ा सा इन ऑर्डिनेट्स को कंपेयर कीजिएगा। ये वाला ऑर्डिनेट, इस रीजन में जो ऑर्डिनेट्स हैं, यानी जहां पे आपके एडजेसेंट स्पैन लोडेड हैं, इन ऑर्डिनेट्स को कंपेयर कीजिएगा जहां पे ये वाला ऑर्डिनेट्स है। ये वाला ऑर्डिनेट काफी छोटा नहीं है इसके मुकाबले में, तो एसीआई कोड हमें, अच्छा अब अगर बहुत एग्जैक्ट आप कर रहे हो तो फिर तो यही तरीका है, हर सपोर्ट के लिए आपको यही करना पड़ेगा, एडजेसेंट स्पैन लोडेड, फार्दर फ्रॉम दैट अल्टरनेट लोडिंग। अच्छा, एक पहले तो आप इसका नाम बेसिक सिर्फ टर्मिनोलॉजी अपने पास नोट करते जाए बेशक, ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या आज टर्म्स क्या पढ़ी है मैंने, ठीक है। तो उस ऊपर पहले हमने बात की थी अल्टरनेट स्पैन लोडिंग या चेकर बोर्ड लोडिंग, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट स्पैन लोडिंग। ये कब करेंगे? फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट के साथ एक और चीज लिख लें, इंटीरियर सपोर्ट। मैंने इंटीरियर सपोर्ट कहा, एक्सटीरियर सपोर्ट नहीं कहा। पहली बात यह है कि एक्सटीरियर सपोर्ट के लिए एडजेसेंट स्पैन लोडिंग की वाली टर्म आप यूज ही नहीं कर सकते, उसके साथ तो एक तरफ स्पैन है, दूसरी तरफ तो है ही नहीं। अच्छा, एडजेसेंट एक्सटीरियर जो स्पैन सपोर्ट है, वहां पे मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट लेने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सटीरियर सपोर्ट पे मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट लेने के लिए अगर मैं इस ए सपोर्ट की बात करूं, आई विल लोड दिस एक्सटीरियर स्पैन, पूरा स्पैन में लोड करूंगा और बाकी फिर अल्टरनेट लोडिंग शुरू हो जाएगी, अगले को अनलोड, लोड, अनलोड, सो ऑन। ठीक हो गया? यानी इसका मतलब यह है कि ऊपर जो मैंने एनालिसिस किया था फॉर बी और एफ और के, इस तरह के मिड स्पैन सेक्शंस के लिए मैंने कहा था ना, दो हमें एनालिसिस करने की जरूरत है मिड स्पैन पॉजिटिव मोमेंट के लिए, ठीक। तो उनमें से ही एक केस जिसमें आपका ये वाला स्पैन लोडेड हो, जैसे ये लोड है इस वक्त बी के लिए बनाया, यही पैटर्न लोडिंग आपको मैक्सिमम मोमेंट एट ए भी देगी, मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट ए भी देगा। अगर मैं यहां पे मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट निकालना चाहूं तो मैं इस स्पैन को लोड करूंगा जैसे यहां किया हुआ है, ये तो बी के लिए किया था लेकिन इसके लिए भी यही करना होगा, इसको अनलोडेड, फिर लोडेड, फिर अनलोडेड। इसी तरह अगर मैं एल सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट फाइंड करना चाहूं तो मैं इस आखिरी स्पैन को एक्सटीरियर स्पैन का वर्ड यूज करेंगे, ठीक। ये जो स्पैन है ये एक्सटीरियर स्पैन है, ये भी एक्सटीरियर स्पैन है, इसको हम कहेंगे इंटीरियर स्पैन, ये भी इंटीरियर स्पैन, ये भी इंटीरियर स्पैन। ठीक हो गया? शेयर का अगर मैंने मैक्सिमम लेना हो तो क्या करेंगे? मसलन मैं शेयर लेना चाहता हूं एट जी सपोर्ट, मैक्सिमम शेयर। अच्छा, लेट्स लुक एट ILD फॉर शेयर। अच्छा, शेयर सपोर्ट पे ज्यादा होती है आमतौर पे या सपोर्ट से दूर? लेट्स लुक एट दिस बीम। अगर हम शेयर एट ए, आल्दो शेयर एट ए इतना क्रिटिकल नहीं होगा जितना कि सपोर्ट्स पे शेयर क्रिटिकल होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम शेयर एट ए फाइंड करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा फॉर शेयर एट ए। अच्छा, उसका तरीका, प्रिंसिपल उसका क्या है? आप रोलिंग डिवाइस इंसर्ट करेंगे ए के ऊपर ताकि एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट स्लाइडिंग उस जगह पे खत्म हो जाए। यू विल स्टिल मेंटेन द एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट रोटेशन। ऑलराइट, इट मींस these two will be at the same angle। ये जो सेगमेंट है इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा। You will only allow them to slide with respect to each other। और उसके बाद उसके बाद पॉजिटिव शेयर अप्लाई करना है। पॉजिटिव शेयर, अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, इस वाली साइड की, इस पे पॉजिटिव शेयर ये होगा, प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ द सेगमेंट। तो ये इसको जाहिर नीचे डिफ्लेक्ट करेगा
और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ऊपर ये ऐसे लगेगा और इसको ऊपर उठाएगा। अब ये यहां से सपोर्टेड है, यहां से ऊपर नहीं उठ सकता, और ये यहां से नीचे आएगा फिर ऊपर एंड सो। बस एक दफा आपको जहां आप कुछ कर रहे हो, मतलब वहां पे कोई जिस सेक्शन पे आप कर रहे हो काम, वहां पे आपको बस समझ आनी चाहिए कि वहां पे रिफ्लेक्शन को क्या हो रहा है। बाकी कंटिन्यूस बीम में एक साइड को उठाएंगे, अगला नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। ये हर जगह आपको कंटिन्यूस बीम में नजर है। आप जो मर्जी लोडिंग लगा दें, ठीक है। आप एक साइड को ऊपर उठाएंगे ना, दूसरी जाएगी ही जाएगी नीचे, कंटिन्यूटी की वजह से। लेकिन सिर्फ ये समझ पहले से आनी चाहिए कि जहां पे आप लोडिंग या कुछ चेंज लेके आ रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अब इसमें जरा देखिएगा, अगर मैं मैक्सिमम पॉजिटिव शियर एट ए निकालना चाह रहा हूं, तो जहां जहां भी ये डायग्राम पॉजिटिव है, यानी जैसे ये रीजन पॉजिटिव है, ये रीजन पॉजिटिव है, उसको लोड कर दूंगा। ये रीजन पॉजिटिव है तो इसको लोड कर दिया, ये रीजन में पॉजिटिव है, इसको लोड कर दिया। नेगेटिव के लिए वाइस वर्सा। गॉट इट? इस पर्टिकुलर केस में अच्छा, इसी तरह अगर हम बी पे शेयर निकाल रहे हो, बी ये पॉइंट है, इस बीम में अगर हम बी पे शेयर निकाल रहे हो तो अगेन यही प्रोसीजर किया जाएगा। अगेन यहां पे देखें, ये जब ये वाली जो साइड है, मैं लेफ्ट साइड को पहले ड्रॉ कर रहा हूं। इस साइड के ऊपर जो पॉजिटिव शेयर लगेगा तो ये नीचे जाएगा और साथ वाला फिर ऊपर उठेगा। अगली साइड पे क्या होगा? दूसरी साइड पे ये ऊपर उठेगा, लेकिन एक चीज अभी रहेगी, जो इसका एंगल है वही एंगल उसका भी होगा, सो वो वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। वैसे आपको अब चूंकि नजर आ रहा है कि असल डायग्राम क्या बनी हुई, तो आई होप इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस मैं जैसे भी ड्रॉ करूं। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो इसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अब ये इस रीजन को सारे को लोड करना होगा यहां तक, फिर उसके बाद यहां तक, एंड बाकी अनलोडेड। ठीक है जी, समझ आ गई। अगर मैं कॉलम डिजाइन करना चाह रहा हूं, मसलन ये जो सपोर्ट है, लेट्स से ये सपोर्ट देख लेते हैं, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट, ये लेट्स से कॉलम, बेसिकली ये कॉलम है लेट्स, जिसकी जगह हमने, अगर इस पे मैं ये फाइंड करना चाहूं कि इस कॉलम को मैक्सिमम एक्सियल लोड, कॉलम को एक्सियल लोड जाना है ना, कब, तो मैं किस तरह के लोडिंग पैटर्न अप्लाई करूंगा? थ्रू आउट जितना भी बीम है सारा का सारा लोड जाएगा। सारे बीम को लोड करेंगे तो कॉलम पे मैक्सिमम एक्सियल लोड जाएगा। ऐसे ही है ना? तो कॉलम्स के लिए यू अप्लाई लोडिंग थ्रू आउट, पूरे को पूरा लोड। ओके, we are going to discuss a very important concept of tributary area and influence area. So basically we are discussing live load reductions, and this is related to tributary area and influence area. ट्रिब्यूटरी एरिया तो हमने डिस्कस कर लिया था। मसलन ये बीम है, ये वाला बीम, इस बीम का ट्रिब्यूटरी एरिया हमने डिस्कस किया था कि हाफ यहां तक और हाफ इधर तक, ये जो विड्थ है ये इसकी ट्रिब्यूटरी विड्थ है, और अकॉर्डिंगली ये जो शेडेड आपको नजर आ रहा है, डार्क शेडेड एरिया, ये उसका ट्रिब्यूटरी एरिया है। और सो ट्रिब्यूटरी एरिया वो एरिया होता है जहां से जितने एरिया को यानी उस बीम ने सर्व करना होता है, उसको सपोर्ट करना होता है। ठीक। इन्फ्लुएंस एरिया क्या होता है? इन्फ्लुएंस एरिया ये वो एरिया है कि जहां पे अगर आप लोड रखेंगे तो उस मेंबर का अंदर जो फोर्सेस या मोमेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। ट्रिब्यूटरी एरिया तो मेरा ख्याल आसान सा कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लुएंस एरिया को इमेजिन करने के लिए कि अगर आप समझना चाहें कि इन्फ्लुएंस एरिया कितना होगा किसी मेंबर का, उसका तरीका क्या है? मैं इस बीम के लिए इन्फ्लुएंस एरिया फाइंड करना चाह रहा हूं। आई रेज दिस बीम बाय यूनिट, मे बी बाय 1 इंच, और इसके साथ जितना एरिया रेज हो जाएगा वो सारा एरिया इसका इन्फ्लुएंस एरिया कहलाएगा। इस बीम को मैंने रेज किया तो यहां ये नोट कीजिएगा कि यहां पे भी एक बीम है, यहां पे भी एक बीम है। इस दरमियान वाली बीम को उठाऊंगा, जब रेज करूंगा
तो ये जितना एरिया है, ये सारा जो डार्क शेडेड है प्लस ये जो लाइट शेडेड है, ये सारा एरिया ऊपर उठेगा इस बीम के साथ, उठाने के साथ। तो ये जितना एरिया है जो इसके साथ रेज हो रहा है बाय रेजिंग दैट मेंबर, वो उसका इन्फ्लुएंस एरिया है। एक कॉलम के लिए ये कैसे होगा? मसलन ये कॉलम है, जैसे अभी आप उज़ैर पूछ रहा था कि उसको तो बीम का भी एक ट्रिब्यूटरी एरिया होता है, हर कॉलम का भी अपना एक ट्रिब्यूटरी एरिया है। इस कॉलम के लिए जो आपको डार्क शेडेड नजर आ रहा है, ये इसका ट्रिब्यूटरी एरिया है। क्या मतलब? इसका बाकी जो लोड्स है वो बाकी जो मेंबर्स है उन्होंने कैरी करना है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस एरिया अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? इस कॉलम को आप रेज करें बाय यूनिट, जितना एरिया इसके साथ रेज होगा जो आपको सारा नजर आ रहा है, डार्क शेडेड प्लस लाइट शेडेड, ये सारा इसका इन्फ्लुएंस एरिया है। ये जो ट्रिब्यूटरी एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, ये इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है और लाइक वाइडली वेल नोन कॉन्सेप्ट है। इस वजह से हम फाइंड ट्रिब्यूटरी एरिया करके फिर सम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको इन्फ्लुएंस एरिया में कन्वर्ट करेंगे। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा इस एरिया को देखिएगा जो इन्फ्लुएंस एरिया है, क्या ये इन्फ्लुएंस एरिया इस डार्क शेडेड एरिया का डबल नहीं है? इंटीरियर बीम्स एंड एज बीम्स विदाउट कैंटिलीवर स्लैब, आप फिलहाल सिर्फ इसको फोकस करें, इंटीरियर बीम्स। इंटीरियर बीम्स के लिए ये जो फैक्टर है जिसको हम के विद सबस्क्रिप्ट एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 होगा, यानी वो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर उसका 2 है। उसके ट्रिब्यूटरी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इन्फ्लुएंस एरिया बन जाएगा। इसी तरह बाकी मेंबर्स के लिए फैक्टर्स है। कॉलम के लिए देखिएगा जरा, ये वाला जो एरिया है ट्रिब्यूटरी एरिया, ये इसके इन्फ्लुएंस एरिया का चौथाई है, 1/4 है। तो इन्फ्लुएंस एरिया इज 4 टाइम्स ट्रिब्यूटरी एरिया फॉर दिस कॉलम। ठीक है, सो दिस फैक्टर इज 4 फॉर इंटीरियर कॉलम्स एज वेल एज एक्सटीरियर कॉलम्स। जी अच्छा, इसको डिस्कस मैं क्यों कर रहा हूं यहां पे? मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं इस चीज को कि हमने पढ़ा था लाइव लोड का टॉपिक। ये अगर आपको थोड़ा सा नया भी लग रहा है, हमने मैं उस वक्त शुरू में एसआई यूनिट में पढ़ाने जा रहा था, लेकिन बीच में मैंने स्विच किया एफपीएस पे, ये आपको पता है सारा। ये तो ये वही टेबल है जो आपने केजीज पर मीटर स्क्वायर में टेबल पढ़ा था स्लाइड्स में या जायद अहमद सिद्दीकी साहब की बुक में, लेकिन ये बस पीएसएफ में, और कोई खास फर्क नहीं है। ज्यादा इस पे खपने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये यूज करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि जी क्लासरूम है तो उसका लोड कितना लेना है। अभी जरा यूनिफॉर्म को देखें, कंसंट्रेटेड को थोड़ा सा अभी साइड पे रखते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। 40 पीएसएफ लेना है क्लासरूम्स के लिए, ठीक है जी। सो ऑन, हर चीज के लिए लोडिंग गिवन है। ये लोडिंग हम ले रहे हैं, लेकिन कोड हमें अलाउ करता है कि ये जो आप लोडिंग ले रहे हैं, मसलन 40 पीएसएफ 60 पीएसएफ जितनी ले रहे हैं, इस लोडिंग को आप अगर एक मेंबर का इन्फ्लुएंस एरिया बड़ा है तो आप उसके लिए लोडिंग रिड्यूस करके ले सकते हैं। 60 पीएसएफ है तो कुछ रिडक्शन फैक्टर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लॉजिक बेसिकली ये है कि एक मेंबर का अगर इन्फ्लुएंस एरिया बड़ा है, इन्फ्लुएंस एरिया मैंने बताया अगर वहां लोड रखेंगे तो वो उस मेंबर का जो फोर्सेस हैं वो उससे अफेक्ट होंगी। अगर उसका इन्फ्लुएंस एरिया बड़ा है तो कोड आपको इसलिए अलाउ करता है रिड्यूस्ड लाइव लोड कि जितना बड़ा इन्फ्लुएंस एरिया है उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या उतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि वो फुल लोड अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ फुल एरिया पे लगा हो। मतलब एक छोटी सी जगह हो ना, छोटी सी जगह, वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो पूरी जगह फुल लोडेड हो जाए। लेकिन बहुत बड़ी जगह हो, ये हो सकता है वो लोडेड हो लेकिन फुल इंटेंसिटी के साथ पूरा का पूरा एरिया लोडेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। इस वजह से एसीआई कोड अलाउ करता है लाइव लोड रिडक्शन बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ द मेंबर यू आर डिजाइनिंग। क्लियर? अब ये लाइव लोड रिडक्शन का कितनी लाइव लोड रिडक्शन लेनी है, ये भी फार्मूला आपको कोड दे रहा है। इसमें एल नॉट क्या चीज है? अनरिड्यूस्ड लाइव। वो जो टेबल से पिक किया था ना आपने, अनरिड्यूस्ड लाइव जिसपे कोई फैक्टर अभी नहीं लगा, वो एल नॉट है। बाकी जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रही है वो फैक्टर है।
दोनों एक तरह की इक्वेशंस हैं, सिर्फ एक रिलेशन यूज किया गया. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. वो रिलेशन क्या यूज किया गया? हमने जैसे पहले डिस्कस किया, इन्फ्लुएंस एरिया इज सम फैक्टर टाइम्स ट्रिब्यूटरी एरिया. तो इस फार्मूले में इस टर्म की जगह पे हमने ए आई लिख दिया, इन्फ्लुएंस एरिया लिख दिया. अब इस फार्मूले को जरा देखिए कि इसमें टर्म्स हैं क्या क्या. 0.25 एक कांस्टेंट है, 15 एक कांस्टेंट है, ए आई एक एरिया है. तो इसके यूनिट्स, एरिया वाले यूनिट्स होंगे, जरा ये नोट कर लीजिएगा कि इसके यूनिट्स क्या होंगे. ये एक बात तो ये कि ये यूएस कस्टमरी सिस्टम का फार्मूला है, ठीक है. इसमें आप ए आई जो पुट करेंगे दैट वुड बी इन एसएफटी स्क्वायर फुट. मैक्सिमम आप रिडक्शन ले सकते हैं वो 50% है. यानी ये जो फैक्टर है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मैक्सिमम रिडक्शन इज 50%, यानी 0.5 का फैक्टर हो सकता है मैक्सिमम की वैल्यू. ठीक हो गया. दूसरी बात यह है कि इफ AI is less than 400 SFT, then no reduction. ठीक हो गया. अब जरा आपको पता है मैं फार्मूलों को थोड़ा सा कंपैक्ट करके लिखने का हक में हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, LR इक्वल टू, ये फार्मूले जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कोड में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इन सारी इंफॉर्मेशन को बाउंड करने, इंक्लूड करने वाला फार्मूला है. इट इज इक्वल टू एल नॉट कह लें, इफ ए आई इज इक्वल टू और लेस देन 400 फुट स्क्वायर. वैसे जरा इस फार्मूले में ऊपर आप 400 पुट करके देखिएगा, ए आई की जगह पे कैलकुलेटर अगर है आपके पास, ए आई की जगह 400 पुट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका. फैक्टर को कैलकुलेट कर देना, एल तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्या आंसर आ रहा है? 1. ठीक है, 1 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, अगर मैं 400 से कम वैल्यू इसके अंदर डालूंगा तो आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना, क्योंकि यहां पे छोटी वैल्यू डालूंगा तो ये ओवरऑल आंसर बड़ा हो जाएगा और वो आपका आंसर इंक्रीज कर जाएगा 1 से भी. तो हम तो रिडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इंक्रीज तो किसी सूरत में अलाउड नहीं है ना. तो 400 के लेस आप पुट करेंगे तो एक्चुअली आप उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, दैट्स नॉट अलाउड. यू हैव टू, मतलब मैग्नीफाई तो कभी किसी सूरत में नहीं करना ना. सो एक बात हो गई. दूसरा, सेकंड केस क्या है कि आपका फार्मूला रहेगा जो लिखा हुआ है L इंटू, इस फार्मूले को नोट कर लें, इसको हमने यूज करना है न्यूमेरिकल्स में. ये फार्मूला हम यूज करेंगे अगर आपका AI बिटवीन, अच्छा, ग्रेटर देन 400 फुट स्क्वायर हो और इक्वल टू और लेसर देन. अब जरा एक चीज देखिएगा, मैंने बेसिकली खुद इसको काइंड ऑफ डेवलप किया है. अगर आप, हमने कहा ना मैक्सिमम रिडक्शन इज 50%. अच्छा, अगर आप ये कर दें कि ये वाला जो फैक्टर है जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, इस फैक्टर को इक्वल टू 0.5 कर दें और AI की वैल्यू निकालें वहां से, तो आपको AI का आंसर मिलेगा 3600 फुट स्क्वायर. ठीक है, जितना एरिया बड़ा होता जा रहा है रिडक्शन फैक्टर छोटा होता जा रहा है, यानी ज्यादा रिडक्शन अलाउ होती जा रही है आपको. लेकिन अगर आपका एरिया 3600 स्क्वायर फुट से भी बढ़ जाएगा तो ये जो फैक्टर है इसका आंसर लेस देन 0.5 आना शुरू हो जाएगा. और कोड कह रहा है मैक्सिमम रिडक्शन 50%. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका एरिया एक्सीड कर रहा है 3600 स्क्वायर फुट से, अच्छा अगर एक्सीड नहीं कर रहा, 400 से भी ग्रेटर है, तो फिर तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा बीच में जो रेंज है. लेकिन अगर आपका AI एक्सीड कर रहा है 3600 स्क्वायर फुट को, तो फिर आपने कोई रिडक्शन, सॉरी 0.5 की रिडक्शन लेनी है बस. ठीक है, ये फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे, इसको नोट कर लें. अच्छा, एक स्टेटमेंट थोड़ी सी देख लें.
लाइव लोड रिडक्शन के हवाले से, ताकि कहीं आप मिस्टेक ना कर दें, live load reduction applies only to live loads due to use and occupancy, not for snow, rain, other loads. ठीक है, यूज और occupancy की जो लोड्स है ना उनके लिए अप्लाई होता है, जो आप टेबल से नॉर्मली पिक करते हैं. अच्छा, दूसरा, नो रिडक्शन इज मेड फॉर एरियाज यूज्ड एज प्लेसेस ऑफ पब्लिक असेंबली. ठीक है, फॉर पब्लिक असेंबली की एरिया, जैसे कोई कॉरिडोर है, वो किसी का प्राइवेट एरिया नहीं, कोई भी उसमें आ सकता है, वहां पे आप रिडक्शन नहीं कंसिडर करेंगे. गैराजेस के लिए नहीं कंसिडर करेंगे. रूफ्स का मतलब टॉप जो आपका स्लैब है उसके लिए भी नहीं रिडक्शन कंसिडर करेंगे. ठीक हो गया. और प्लस आप, ये हमने पहले पढ़ लिया, फॉर कॉलम सपोर्टिंग नो लेस देन 40% फॉर अदर मेंबर्स. ठीक है, ये अगर लाइव लोड 100 psf को एक्सीड कर रहा है, 100 psf बहुत ज्यादा लोड होता है, तो फिर भी आपको लाइव लोड अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कॉलम. ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं. ठीक है, और ये चैप्टर 5 है इसे. ये मैं कुछ बातें चाह रहा था, ये मुझे खुद जबानी याद नहीं थी, मुझे पता था ये कहीं लिखी हुई है, तो मैं इसलिए आपको चाह रहा था दिखा दूं. अब जरा अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाए. अच्छा, अभी हमने डिस्कशन कर ली ना कि हमने बीम को हर सेक्शन अलग से डिजाइन होना है, यानी हर सेक्शन के लिए एक सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइव लोड है जो अप्लाई होगा तो वहां मैक्सिमम लोड प्रोड्यूस होगा. डिस्कस किया हमने. अच्छा, मसलन अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं ये वाला सेक्शन, मिड स्पैन सेक्शन, ये जो आपको नजर आ रही है ये फ्लोर बीम्स हैं, ये इंटरमीडिएट फ्लोर बीम है, ये फ्लोर बीम है, लेकिन ये अपना लोड कॉलम को ट्रांसफर कर रहा है. ठीक, ये तो हम काफी पहले डिस्कशन कर चुके हैं. इस फ्लोर बीम को अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं और इसके मिड स्पैन सेक्शन को डिजाइन कर रहा हूं, तो इसका ट्रिब्यूटरी विड्थ वाली बात तो वही रहेगी. ट्रिब्यूटरी विड्थ एक साइड से हाफ, दूसरी साइड से हाफ, एंड ऑफ द स्टोरी. इस सेक्शन के लिए जो ट्रिब्यूटरी एरिया है, ये वो एरिया होगा जिसको आपने लोड करना है. पैटर्न लोडिंग में जिस एरिया को लोड करेंगे, लेंथ सिर्फ उतनी कंसीडर होगी. मसलन जब मैं इसका ट्रिब्यूटरी एरिया, मैं इस सेक्शन को डिजाइन कर रहा हूं, इस सेक्शन को, इस मिड स्पैन सेक्शन को, और अच्छा, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, इसके ऊपर लोडिंग निकालना. अब लोडिंग निकालने का क्या तरीका है, एरिया लोडिंग मल्टीप्लाइड बाय ट्रिब्यूटरी विड्थ. अब वो जो एरिया लोडिंग है वो दो चीजों से बन रही है, डेड लोड और लाइव लोड. डेड लोड के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है. वो जो आप लाइव लोड ले रहे हैं उसमें लाइव लोड रिडक्शन आपको कोड अलाउ कर रहा है, ऐसे ही है, आप बात समझ रहे हैं ना. अब वो लाइव लोड रिडक्शन जो आपको कोड अलाउ कर रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इन्फ्लुएंस एरिया, और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ट्रिब्यूटरी एरिया पे. इसका मतलब क्या हुआ, इस सेक्शन को डिजाइन करते हुए मुझे इसके लिए जो रिड्यूस्ड लाइव लोड कैलकुलेट करना है, उस कैलकुलेशन के लिए मुझे ट्रिब्यूटरी एरिया चाहिए इसका. अब इसका ट्रिब्यूटरी एरिया कितना है, ये जो अगर आप देखें ये 12 फीट है यहां से लेके यहां तक, और ये 12 फीट है यहां से, तो ये 6 फीट प्लस 6 फीट, ऐसे ही है, 6 प्लस 6 12 हो गया. ये भी विड्थ, ट्रिब्यूटरी एरिया की विड्थ है 12 फीट, लेंथ इसकी कितनी है 24 फीट. यानी ट्रिब्यूटरी एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी आपको पैटर्न लोडिंग की समझ होनी चाहिए. गेटिंग दिस पॉइंट. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके सामने करता हूं, इसको मैं करूंगा कैसे. AI निकालूंगा. इसके बाद हमने फैक्टर डिस्कस किया, इंटीरियर बीम के लिए 2 टाइम्स AI होता है, 880 होता है ये. सो ये बन जाएगा 2 इंटू, वो आंसर बताएंगे जरा क्या बनेगा, 288. ठीक है, उसका डबल कर दें. ठीक है, ये अब मेरा AI की वैल्यू है 576 फुट स्क्वायर. ये कहां पे फॉल कर रही है, सेकंड रेंज में. इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई होगा. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैं पुट करूंगा यहां पे, अब इसमें LR इक्वल टू L नॉट इंटू 0.25 प्लस 15 ओवर अंडर रूट ऑफ 576. फैक्टर कितना हो जाएगा 0.875. हाँ, why no live load reduction? Is it not okay? Maximum reduction 50% allowed है ना.
तो 87.5% इज फाइन। ठीक हो गया। वैसे भी जब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे ना तो वो आपसे मिस्टेक होगी नहीं, वो जो आप पहले लिमिट्स वाली मिस्टेक। ठीक हो गया। अब ये मैं अगर मेरे पास रिड्यूस, मैं आपको एग्जांपल फर्दर कर लेता हूं। चलो लेट्स से L naught was 60 psf, so LR would be 60 psf into 0.875, कितना हो जाएगा? कर लें यार। 52.5 psf। अब मैं ये रिड्यूस लाइव लोड इसके लिए निकाल चुका। अब टोटल लोड, लाइव लोड और डेड लोड का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अभी उस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज कर रहे हैं वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन लेट्स से मेरे पास फैक्टर्ड स्टेप्स, इन ये स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में हमने करने जा रहे हैं। फैक्टर्ड एरिया लोडिंग मेरे पास आ गई। लेट्स रिप्रेजेंट दैट बाय QU। ठीक है, PSF में ये मेरे पास आ गई। ठीक है, उस एरिया लोडिंग में डेड लोड भी शामिल होगा और उन पे फैक्टर्स भी लगे होंगे, 1.2 डेड, 1.6 लाइव या 1.4 डेड जो भी लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास फैक्टर्ड, जब आपके पास QU आ गया, अब WU यानी लाइन लोडिंग पाउंड पर फुट में निकालने के लिए यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद व्हाट? विड्थ ऑफ ट्रिब्यूटरी एरिया, इस विड्थ से। तो आपके पास बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ जाएगा PS पाउंड पर फुट में। बीम में बस यही चाहिए होता है। उसके बाद फिर आगे कैसे करना है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई? दिस इज इन पाउंड पर फुट स्क्वायर। ठीक है, और 12 जो है वो फुट में है, so this will finally become pound per foot। ये मेरे पास आ जाएगा टोटल QU, मेरे पास आया ये QU। अगर तो मैंने पूरा का पूरा लोड लगाना था तो मैं ये QU सारा का सारा हर स्पैन पे लगाऊंगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इस सेक्शन को डिजाइन कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन, तो डेड लोड हर जगह लगा रहेगा। इसका मतलब है डेड लोड, फैक्टर्ड डेड लोड अलग से कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ेगी बिफोर कंबाइनिंग इट विद लाइव लोड। और लाइव लोड अलग से, लाइक 1.6 टाइम्स लाइव लोड अलग से आपको पता होना चाहिए। ब्रेकडाउन मतलब पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि डेड लोड ने सारा का सारा लगना है, लाइव लोड ने सिर्फ उस जगह लगना है जहां वो मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब ये है कि वो जो लाइव लोड है उसको भी आपने यूडीएल में अलग से कन्वर्ट करना है, डेड लोड को अलग से यूडीएल में कन्वर्ट करना है। गेटिंग इट? अभी प्रैक्टिस में आपको करवाता हूं, लेकिन सिर्फ समझाना यहां पे इस जगह ये समझाने का पर्पस क्या था, लाइव लोड रिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रिब्यूटरी एरिया चाहिए, और वो ट्रिब्यूटरी एरिया जिस सेक्शन को आप डिजाइन कर रहे हैं, जैसे यहां इस मिड स्पैन सेक्शन को डिजाइन कर रहे थे, उस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं इस वाले सेक्शन को, तो जिस तरह आपको इस दिखाया अलग बीम में ताकि आप समझ सकें इसको, अगर ये यहां दिखाया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि किसकी बात हो रही है। जब इस सेक्शन को डिजाइन करना होगा, चाहे वो इस वाले बीम में हो या इस वाले बीम में हो या इस वाले किसी बीम की भी बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस सेक्शन को डिजाइन करूंगा तो मैं लोड इस जगह लगाऊंगा, इस जगह ये सेक्शन डिजाइन करूंगा, या ये वाला लोडेड रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब इसके लिए ट्रिब्यूटरी एरिया, दिस विल बी द ट्रिब्यूटरी एरिया। वही तकरीबन वही, लेकिन लेंथ का फर्क है, लेंथ इसकी डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है, इसलिए इसका ट्रिब्यूटरी एरिया उससे थोड़ा सा बड़ा है। वो 24 फुट लंबा था या 28 फुट लंबा है, तो इसका ट्रिब्यूटरी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी ज्यादा रिडक्शन अलाउड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको लोड करना, इसके लिए फाइंड कर रहा हूं नेगेटिव मोमेंट एट दिस सपोर्ट, तो फिर मेरी इन दोनों एडजेसेंट स्पैन को लाजमी लोड करना है। इसका ट्रिब्यूटरी एरिया उससे भी बड़ा हो जाएगा, इसकी लेंथ 24 + 28 हो जाएगी। विड्थ तो सबकी वही है ना, यूनिफॉर्म स्पेसिंग होने की वजह से। इस पर्टिकुलर केस में यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूं वही है, ठीक हो गया। अच्छा, बात समझाने की क्या है, हर सेक्शन का
एक ही बीम में, मैं इस बीम की बात करूं अगर, हर सेक्शन का ट्रिब्यूटरी विड्थ तो वही होगी, लेकिन ट्रिब्यूटरी लेंथ अगर स्पैन्स डिफरेंट है तो डिफरेंट होंगे। हाँ, लेकिन कंप्लीटली वो सारी अल्टरनेट लोडिंग उसमें कंसिडर नहीं होगी, पार्शियली हम वहां से ले रहे हैं कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये वैसे अच्छा पॉइंट मैंने डिस्कस किया, ये बड़ा कुछ पॉइंट्स है ना जिससे स्टूडेंट जल्दी कंफ्यूज है, फिर मैं समटाइम्स पहले मैं ज्यादा डिस्कस कर, लेकिन हम कुछ स्टूडेंट को ना हाइड कर प्रेस कर लेता हूँ, आई डोंट पब्लिसाइज। अगर कोई अलग से पूछे तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज आप पूछ सकते थे कि अगर मैं अल्टरनेट लोडिंग के केस में इसको लोड करता हूँ, इसको अनलोड, लेकिन इसको तो लोड करूंगा, तो इसका मतलब ट्रिब्यूटरी एरिया में ये भी शामिल हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट कंप्लीटली, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज नॉट कंप्लीटली वही जो आपने उससे पढ़ लिया, लेकिन पार्शियली वहां से लिया गया। मिड स्पैन के केस में जो एरिया लोड हो रहा है, यानी जिस स्पैन का वो मिड स्पैन है, वो उसकी लेंथ आएगी उसमें ट्रिब्यूटरी एरिया में, और सपोर्ट के केस में दोनों एडजेसेंट की लेंथ आएगी। थोड़ी सी इसकी वजह ये भी है कि बेसिकली अगर आप कंपेयर करें इनकी आईएलडीज को, मसलन इस आईएलडी को देखिएगा जरा, अगर मैं बी को डिजाइन कर रहा हूं ना, बी सेक्शन या मिड स्पैन ऑफ दिस फर्स्ट एसी, तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला स्पैन है कि यहाँ पे लोड लग जाए। ऑल्दो यहाँ लोड लगने से भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस होगा, बट ऑर्डिनेट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वो जो फार्दर अवे वाले रीजन है ना, वो हम ट्रिब्यूटरी एरियाज में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ इमीडिएटली सराउंडिंग में एरिया वो इंक्लूड होगा। मिड स्पैन के लिए वही वाला स्पैन जिसका वो मिड स्पैन है, सपोर्ट के लिए दोनों एडजेसेंट स्पैन, दैट्स इट। अच्छा, एक तो ये बात हमने डिस्कस कर ली है, जिस सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं उस सेक्शन के लिए आपको अलग से रिड्यूस्ड लाइव लोड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं डिजाइन कर रहा हूं इस सेक्शन को, तो मेरे पास रिड्यूस्ड लाइव लोड की वैल्यू और होगी, इस सेक्शन को डिजाइन करूंगा तो रिड्यूस्ड लाइव लोड की वैल्यू और होगी, क्योंकि वो फैक्टर डिफरेंट है जिससे वो रिड्यूस हो रहा है। क्यों डिफरेंट है? ट्रिब्यूटरी एरिया डिफरेंट है। अच्छा, इससे एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ज्यादा लेंथी हो जाता है। अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपके पास ये चॉइस भी है कि जो आपके पास मिनिमम रिडक्शन फैक्टर आए, मसलन एक से आया 0.875, दूसरे से आया 0.9, तीसरे से आया 0.92, मिनिमम क्या है आपके पास इस वक्त 0.875। आप सबके लिए 0.875 कंजर्वेटिवली ले सकते हैं, ये अलाउड कर रहा है आपको कोड कि सबके लिए एक ही फैक्टर। कोड आपको इवन ये भी अलाउ कर रहा है कि आप ये रिडक्शन अप्लाई ही ना करें सिरे से, ये अलाउ कोड कर रहा है, बट इकोनॉमिकल डिजाइन विल ऑलवेज इन्वॉल्व दीज रिडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये आपने इसको करना है, रिड्यूस लाइव लोड लेके करना है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोडिंग। आपके पास आ गई है, बीम पे लोडिंग आ गई, यूडीएल आ गया आपके पास। अब उसके बाद खाली लोडिंग तो नहीं चाहिए हमें, तो क्या डिस्कस किया था, एमयू चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा? इस जगह पे लोड आ गया, बीम पे लोड आ गया, एमयू कैसे निकालेंगे? एक तरीका क्या है, डिटेल स्ट्रक्चरल एनालिसिस, खुद सॉल्व करें उसको, हाथ से करें, सॉफ्टवेयर से करें डिटेल स्ट्रक्चरल एनालिसिस। दूसरा तरीका यह है कि एसीआई ने हमें कुछ कोफिशिएंट्स दिए हुए, उन कोफिशिएंट्स को यूज कर लें। वो जो कोफिशिएंट्स हैं ये एसीआई मोमेंट एंड शियर कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एसीआई मोमेंट। जरा इसको देखिएगा, मोमेंट हम इससे एक इक्वेशन है उसमें बस WU/ln²। अगर आपको याद हो, बेंडिंग मोमेंट अगर ऊपर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो तो एक जो फैक्टर है वो WL² होता ही होता है उसमें। दूसरा मसलन 1/8 हो जाए WL²/8 इन केस ऑफ अ मिड सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स एंडेड, दोनों साइड से फिक्स एंडेड बीम है तो मे बी WL²/12 या WL²/24, यानी WL² इज समथिंग दैट अपीयर्स एवरीवेयर, फैक्टर सिर्फ चेंज हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके एसीआई ने हमें डिफरेंट सेक्शंस के लिए और डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस के लिए कुछ कोफिशिएंट दिया। अगर वो कोफिशिएंट पता चल जाए, बाकी आप उसको मल्टीप्लाई कर दे WL² से। अच्छा, अब
ये आगे आपको W के साथ जो फैक्टर नजर आ रहा है, L के साथ जो सब्सक्रिप्ट नजर आ रहा है, LN नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? वैसे N का वर्ड जो यहाँ पे आया है वो नेट से आया है। नेट लेंथ जैसे होती है जिसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। वर्ड नेट लेंथ नहीं, नेट सिर्फ इसलिए बताया कि आपको पता चले कि N क्यों लगाया गया सब्सक्रिप्ट, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है? ये इफेक्टिव लेंथ का डिस्कशन, इसके सेंटर से लेके दूसरे सपोर्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये इसको हम कहते हैं सेंटर टू सेंटर स्पैन। इसी तरह ये L2 दूसरा स्पैन है, सेंटर टू सेंटर। LN1 क्या है? इसका आउटर यानी सपोर्ट के एज से लेके दूसरे सपोर्ट के एज तक, ठीक हो गया। इसी तरह ये अगर ये सपोर्ट एक कॉलम है तो इस कॉलम के इस वाले एज से लेके दूसरे कॉलम के एज तक। इसी तरह अगर ये नीचे जो है ना एक गर्डर सपोर्ट कर रहा है एक फ्लोर बीम को, तो ये उस गर्डर का ये वाला एंड दूसरे गर्डर या मे बी दूसरी साइड पे कॉलम हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन है। ऑलराइट, सो अगर मिड स्पैन सेक्शन है, मसलन मैं कहता हूं ये वाला सेक्शन, तो मिड स्पैन सेक्शन में फिर LN का वर्ड बड़ा क्लियर है। जिस स्पैन का वो मिड है उसी स्पैन का LN, उसी स्पैन की इफेक्टिव लेंथ। अगर इसको कर रहा हूं या मिड स्पैन को कर रहा हूं तो इसी का इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्पैन। लेकिन अगर मैं इस सपोर्ट वाले सेक्शन नेगेटिव मोमेंट के लिए डिजाइन कर रहा हूं, फिर दोनों का एवरेज, LN1 और LN2 का एवरेज, ये यूज किया जाएगा यहां पे जब मैं नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट कैलकुलेट करूंगा। हाँ, एक्सटीरियर की बात अगर करें, एक्सटीरियर सपोर्ट, तो एक्सटीरियर सपोर्ट के मतलब एक्सटीरियर सपोर्ट से इधर तो कोई स्पैन है ही नहीं, इधर ही सारे स्पैन है, तो वो जो एक्सटीरियर स्पैन है ना उसका जो LN है दैट वुड बी यूज। क्लियर? और WU जो लिखा हुआ है वो है इफेक्टेड लोडिंग इन पाउंड पर फुट या किलो न्यूटन पर मीटर, जिस यूनिट में भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है। शेयर का ये कि आप जिस स्पैन में शेयर निकाल रहे हैं उसी स्पैन का LN निकालें, ठीक है। मसलन मैं इस स्पैन के इस साइड पे टुवर्ड्स यानी हूं इस स्पैन में सपोर्ट के करीब यहां पे निकालना चाह रहा हूं, तो मैं इस स्पैन का LN यूज करूंगा। इस साइड पे निकालना चाहूं इसका यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, फॉर बेंडिंग मोमेंट ब्रैकेट में नेगेटिव लिख लेंगे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात हो रही है। द क्रिटिकल सेक्शन इज एज ऑफ द सपोर्ट। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग कि हमें जस्ट वो कोफिशिएंट पिक करना है। अब वो कोफिशिएंट कैसे पिक किया जाएगा? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम ACI मोमेंट कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं तो फिर हमें पैटर्न लोडिंग से जान छूट जाती है, क्योंकि ये पैटर्न लोडिंग को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रही है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके अंदर कोफिशिएंट्स को थोड़ा सा एनलार्ज किया गया है ताकि पैटर्न लोडिंग का जो इफेक्ट है वो भी शामिल हो जाए। यानी पैटर्न लोडिंग से का मतलब है आप डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, रिलेटिवली डिटेल्ड एनालिसिस। उस डिटेल्ड एनालिसिस, उस पैटर्न लोडिंग की मतलब कि टेंशन से बचने के लिए तो आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको डेड लोड अलग से कैलकुलेशन, अलग से ब्रेकडाउन पता होना जरूरी नहीं कि डेड लोड इतना है, लाइव लोड इतना है। क्यूमुलेटिव आपको एक लोड, इफेक्टेड लोड चाहिए, बस QU जिसको आप WU में कन्वर्ट कर दें और उस फार्मूले में आप उसको यूज कर लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हर सेक्शन का अपना रिड्यूस्ड लाइव लोड है, उस वजह से उसका अपना एक WU बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। बट पैटर्न लोडिंग अब आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आप ये डेड और लाइव एक ही लोड, बस आप अप्लाई करके कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बस आपने कैलकुलेट कर लिया कि इतना लोड है, आपने कोफिशिएंट उठाया और कहा कि बस इतना मोमेंट यहां पे लग रहा है, एंड कोई बेंडिंग डायग्राम नहीं आप बना रहे। अच्छा, जरा देखिएगा इन कोफिशिएंट्स को आपने पिक कैसे करना है। पहले इस टर्मिनोलॉजी को जरा समझिएगा। इस टर्मिनोलॉजी ये है। अच्छा, ये विजिबल है ना आपको, या बड़ा कर दूं? ओके, आपको नजर आ रहा है यहां से बाद और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एंड, ठीक है। दूसरा, इस स्पैन को हम एंड स्पैन, ये पहले भी बात हो, एंड स्पैन या एक्सटीरियर स्पैन का वर्ड समटाइम्स यूज हो जाता है, एंड स्पैन भी कह सकते हैं। इंटीरियर स्पैन्स, ये इनके लिए ये इंटीरियर स्पैन्स है, सिंपल। अच्छा, ये जो आपको नजर आया ये है एक्सटीरियर सपोर्ट, और इसका ये एक्सटीरियर फेस है, ये इसका इंटीरियर फेस है।
ठीक है, इंटीरियर फेस ऑफ एक्सटीरियर सपोर्ट, इसके ऊपर जो मोमेंट है ना वो आपने कैलकुलेट करना होता है, यानी उसके ऊपर आपने डिजाइन करना होता है। अच्छा, ये इंटीरियर सपोर्ट है, और लेकिन इंटीरियर सपोर्ट में ये एक स्पेशल इंटीरियर सपोर्ट है, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। ये एक्सटीरियर है, जो पहला इंटीरियर है ना उसको हम कह रहे हैं फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। उसका ये एक्सटीरियर फेस, ये इंटीरियर फेस, या आप ठीक है इंटीरियर फेस, ठीक है। इसी तरह इंटीरियर भी, अगर इंटीरियर सपोर्ट है उसके लिए हम इंटीरियर एक्सटीरियर की बात नहीं करते, बस उसके सिंपली फेस की बात करेंगे। यही सिचुएशन आपको दूसरे एंड पे भी नजर आएगी, इस इधर जाके फिर एक कोई एक्सटीरियर सपोर्ट आएगी, उससे पहले एक फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट आएगी, और इसी तरह से ये फेसेस आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, हमने टोटल 6 क्रिटिकल सेक्शंस के एक कंटिन्यूस बीम, बेशक उसके 200 भी स्पैन्स है ना, तो आपने सिर्फ 6 क्रिटिकल लोकेशंस पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के उसके ऊपर डिजाइन करना है, ठीक हो गया। 6। बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू कि वो कौन कौन से लोकेशंस हैं, इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी आप इस शॉर्टकट मेथड को यूज कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड मेथड को, कोफिशिएंट मेथड को यूज कर सकते हैं या नहीं, यू हैव टू चेक सर्टेन लिमिटेशंस। अगर वो लिमिटेशंस ओबे नहीं हो रही हैं तो फिर आपको पैटर्न लोडिंग कंसीडर करके खुद से स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ेगा। वो कंडीशंस ये हैं, मैं क्विकली रीड कर रहा हूं। देयर आर 2 or more कंटिन्यूअस स्पैन्स, मतलब कब अगर एक ही स्पैन है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, कंटिन्यूअस तो फिर हुआ ही नहीं। 2 या 2 से ज्यादा कंटिन्यूअस स्पैन, ठीक है। सेकंड, स्पैन्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। किस तरह से, कितना मार्जिन अलाउड है? जो बड़ा वाला स्पैन है वो छोटे स्पैन से मैक्सिमम 1.2 टाइम्स बड़ा हो सकता है। अगर एक मसलन 10 फुट है तो दूसरा 12 फुट हो सकता है। अगर वो 12.5 हो गया या उससे बड़ा हो गया 12 से, तो फिर ये मेथड वैलिड नहीं होगा, फिर आपको खुद से स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट, लोड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई भी पॉइंट लोड आ गया, क्योंकि आपने फार्मूले में देखा ना क्या था, WL², वो W क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कहीं आपको नजर आ रहा है कंसंट्रेटेड लोड? नहीं, कंसंट्रेटेड लोड के लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोर बीम पे तो हमेशा चलो, अगर स्लैब पे कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या, फ्लोर बीम के ऊपर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा, लेकिन गर्डर के ऊपर जहां वो फ्लोर बीम को सपोर्ट कर रहा होगा, वो फ्लोर बीम उसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? गर्डर्स के लिए ये तरीका नहीं कर सकते आप। गर्डर्स के लिए यू हैव टू परफॉर्म डिटेल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अच्छा, अनफेक्टेड लाइव लोड डज नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ अनफेक्टेड डेड लोड। ये अनफेक्टेड का वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। मेंबर्स आर प्रिज्मेटिक, यानी बीम का जो सेक्शन है वो थ्रू आउट एक ही चल रहा है, ये डेप्थ चेंज नहीं हो रही, विड्थ चेंज नहीं हो रही, सो ऑन। रिफोर्समेंट चेंज हो सकती है, लेकिन ग्रॉस जो सेक्शन है उसकी बात हो रही है। अगर इनमें से कोई कंडीशन वायलेट होगी तो फिर हम डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट्स अस्यूम क्या किसी कंडीशन में, एक सिचुएशन में कंडीशंस वैलिड है, फिर कैसे करेंगे एनालिसिस? ये कोएफिशिएंट्स आपने उठाने, 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। ये सिचुएशन किस बेस पे डिफरेंट है? ABC बेस्ड ऑन दिस एक्सटीरियर सपोर्ट। कि वो एक्सटीरियर सपोर्ट क्या है? एक पहला केस क्या हो सकता है? आपका ये जो डिसकंटिन्यूअस एंड है, एक्सटीरियर सपोर्ट जिसको मैं कह रहा हूं, डिसकंटिन्यूअस एंड अनरेस्ट्रेंड हो। अनरेस्ट्रेंड से मुराद ये नहीं कि वहां पे कोई सपोर्ट ही ना हो, वहां पे कोई मोमेंट रेस्ट्रेंड ना हो। जैसे अभी बात कर रहा था मैसनरी वॉल के ऊपर स्लैब प्लेस करके, ठीक है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ना हो, बस मोमेंट रेस्ट्रेंड अगर नहीं है तो वो आपका पहला वाला केस बन जाएगा। सेकेंड केस क्या है? ये जो डिसकंटिन्यूअस एंड है, दिस इज इंटीग्रल विद सपोर्ट वेयर सपोर्ट इज अ स्पेंड्रल गर्डर। समझ आ गई? यानी मिसाल के तौर पे अगर हम इसको देखें, ये जो फ्लोर बीम है, ये वाला फ्लोर बीम, या चलो इस EFGH को देखें जरा, ये जो फ्लोर बीम है, इसका ये जो डिसकंटिन्यूअस एंड है, यहां पे क्या चीज है? इसको क्या चीज सपोर्ट कर रहा है? गर्डर। ये वाला गर्डर है ना, ये गर्डर इसको सपोर्ट कर रहा है। यानी डिसकंटिन्यूअस एंड ऑफ दिस फ्लोर बीम इज इंटीग्रल विद द सपोर्ट, मोनोलिथिक होने की वजह से, एंड दैट मोनोलिथिक सपोर्ट इज अ गर्डर।
अच्छा, तीसरी कंडीशन, दिस कंटिन्यूअस एंड स्टिल इंटीग्रल विद सपोर्ट बट दिस टाइम इट इज अ कॉलम लाइक दिस। जैसे सुन यार, जैसे ये वाला फ्लोर बीम है, इस फ्लोर बीम का यहां पे सपोर्ट इंटीग्रल है, लेकिन ये सपोर्ट क्या है? कॉलम। ठीक। अच्छा, अब जरा कंपेयर कीजिएगा इनमें कोफिशिएंट्स को। पहले मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं वो है, किसी भी इंटीरियर स्पैन में, जैसे ये इंटीरियर स्पैन है, इंटीरियर स्पैन में मिड स्पैन मोमेंट। अच्छा, जरा देखिएगा यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1/16। इस केस में यहां पे क्या है? 1/16। यहां पे इसका मतलब है कि मिड इंटीरियर जो स्पैन है उसका मोमेंट कोफिशिएंट, मिड स्पैन पहले की बात होगी, उसका कोफिशिएंट चेंज नहीं होता डिसकंटिन्यूअस एंड की सपोर्ट कंडीशन के लिहाज से, वहां फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जरा इसको देखिएगा, इंटीरियर सपोर्ट, फर्स्ट इंटीरियर की नहीं बात कर रहा, टिपिकल इंटीरियर सपोर्ट, यहां पे कोफिशिएंट कितना है? -1/11। दूसरी साइड पे भी वही रहेगा, ठीक है, -1/11, -1/11, -1/11, -1/11। क्या बात, इसका क्या मतलब हुआ? एंड सॉरी, इंटीरियर स्पैन का मोमेंट कोफिशिएंट पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी चेंज नहीं होता, इससे अफेक्ट नहीं होता। ये एक्सटीरियर डिसकंटिन्यूअस एंड एक्सटीरियर सपोर्ट की कंडीशन क्या है? ये इस एंड स्पैन के मोमेंट्स कोफिशिएंट को अफेक्ट करेगा। 3 कोफिशिएंट्स को अफेक्ट करेगा मोमेंट के। जब आप यहां पे फाइंड करेंगे मोमेंट कोफिशिएंट, उसको अफेक्ट करेगा डेफिनेटली, ये तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। यहां का जो मिड स्पैन मोमेंट है एंड स्पैन के अंदर, एंड स्पैन का मिड स्पैन, वहां पे मोमेंट अफेक्ट होगा, और दूसरा यहां का मोमेंट अफेक्ट होगा। फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट का एक्सटीरियर फेस, जरा देखिएगा, अगर ये मोमेंट, अगर ये डिसकंटिन्यूअस एंड अनरेस्ट्रेन्ड है, तो पहले जैसे मैंने बात कर ली है, ये मोमेंट कोफिशिएंट 0 होगा, यानी यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं डेवलप होगा, क्योंकि रोटेशन प्रिवेंट ही नहीं हो रही ना। अच्छा, अगर ये 0 है तो ये वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है? 1/11, और ये -1/10। अच्छा, कंपेयर कीजिएगा जब हमारे पास ये सपोर्ट एक गर्डर हो, उस केस में ये वैल्यू थोड़ी सी आ गई। ये माइनस का मतलब सिर्फ ये कि ये नेगेटिव है, बस नेगेटिव मोमेंट है बस, ठीक है। -1/24 नजर आ रहा है अब आपको, थोड़ा 0 के मुकाबले में थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी ना मैग्नीट्यूड वाइज, एब्सोल्यूट स्पीकिंग, और ये वैल्यू थोड़ी रिड्यूस होगी। ये वैल्यू या वही रहेगी या थोड़ी बड़ी, ठीक है। इसकी तरफ मैं आता हूं कि क्या होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट, अगर कॉलम आ जाए, कॉलम ज्यादा स्टिफर होता है कंपेयर टू अ गर्डर। स्टिफर होने का मतलब है कि वो और ज्यादा मोमेंट रेस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पे। इसका मतलब क्या है कि वो और ज्यादा नेगेटिव मोमेंट वहां जनरेट करेगा। -1/24 से बड़ा होके कोफिशिएंट क्या हो गया? -1/16। ये वाला कोफिशिएंट उतना ही रह गया, और ये वाला कोफिशिएंट भी उतना ही रह गया। आल तो ये थोड़ा सा इससे एक्चुअली कम होगा, लेकिन कंजर्वेटिवली उतना ही रखा गया, ठीक है, कंजर्वेटिवली उतना ही रखा गया। एक सेकंड है, ये जो आपको कहीं पे -1/10 या -1/9 के बीच में R नजर आ रहा है, ये R को जरा समझेगा, कब -1/10 और कब -1/9 यूज करेंगे। -1/9 इस केस, स्पेशल केस में यूज होगा। कौन सा केस? इफ ओनली 2 स्पैन्स, और इस केस की पहले बात, ये जो बी वाला केस है ना, इसकी बात हो रही है, डिसकंटिन्यूअस एंड अनरेस्ट्रेन्ड। यहां पे -1/10 जनरली -1/10 होगा, स्पेशल केस में -1/9 होगा। स्पेशल केस क्या है? इफ ओनली 2 स्पैन्स, अगर 2 स्पैन्स हैं -1/9, 2 से ज्यादा -1/10, ठीक हो गया। और एक चीज सिर्फ देख लीजिएगा, अच्छा, ये जो कोफिशिएंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस बीम और कंटिन्यूअस वन वे स्लैब दोनों के लिए वैलिड है। कंटिन्यूअस बीम एज वेल एज वन वे कंटिन्यूअस स्लैब। मैंने आपको 6 सेक्शंस बोले थे, जरा काउंट कीजिएगा मैं कौन कौन से सेक्शंस की बात कर रहा था। 2 जो सेक्शंस हैं वो मिड स्पैन है। कौन कौन से? एक टिपिकल जो आपका अंदर वाला स्पैन, इंटीरियर स्पैन में मिड स्पैन मोमेंट, दूसरा एंड स्पैन में मिड स्पैन मोमेंट,
ठीक, ये दो मोमेंट्स आ गए पॉजिटिव आपके पास। चार आपके पास टोटल 4 है, मैं बताऊंगा आपको 3 हो जाते हैं बाद में, लेकिन है काउंट करते हुए हम कहेंगे 4। कौन कौन सी लोकेशन नेगेटिव मोमेंट की? एक्सटीरियर, ये जो फेस है इंटीरियर फेस ऑफ एक्सटीरियर सपोर्ट एक होगी, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट का एक्सटीरियर फेस और अंदर वाला फेस भी 3 हो गए। चौथा होगा टिपिकल इंटीरियर सपोर्ट का, जो भी आप उसको फेस का इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी फेस, एक ही काउंट करेंगे, वो 4 हो गए। इनमें से ये जो दो एक ही सपोर्ट के 2 अलग अलग फेसेस पे ले रहे हैं, अगर आप गौर करें यहां पे जब मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो W U इसका भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, L N इसके लिए दोनों का एडजेसेंट स्पैन का एवरेज होगा। फर्क कहां रह जाएगा? कोफिशिएंट्स का। अब कोफिशिएंट जरा देखिएगा, कोफिशिएंट किसका बड़ा है? इस केस में ये वाला कोफिशिएंट अंदर वाला बड़ा है, ये बाहर वाला -1/10, लिहाजा ये बड़ा हो जाएगा। अब बीम में ऐसा नहीं है कि यहां पे आपने रीइंफोर्समेंट इधर इस फेस पे कुछ है तो 1 फुट के बाद कुछ और हो गई, वही कंटिन्यूटी रखी जाएगी। लिहाजा इनमें से जो बड़ा कोफिशिएंट होगा उसके ऊपर आप दोनों सेक्शंस को डिजाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट के दोनों फेसेस पे जो मोमेंट वैल्यू आ रही है उसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसके लिए आप उस सेक्शन को डिजाइन करेंगे। इधर देखिएगा, ये -1/11, ये -1/9, ये -1/10। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि ये वाला जो फेस है ये वैल्यू बड़ी है इसकी। एंड स्पैन पे जब कैलकुलेट करेंगे एंड स्पैन से तो वो आपको बड़ी वैल्यू देगा। अच्छा, ये मैंने मोमेंट को डिस्कस कर लिया ओवर, सिर्फ 1 मिनट में शेयर बता रहा हूं। शेयर के लिए भी कोफिशिएंट्स आपको दिए गए हैं, यानी शेयर के लिए कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है? आपने देखा यहां पे WU/LN/2 हर, ये तो जैसे 1W/L² था, यहां WU/LN हो गया। सिर्फ CV आपने पिक कर रहे हैं, वो कैसे पिक करेंगे? इस टेबल से। शेयर का कोफिशिएंट नॉर्मली आपको 1 ही नजर आएगा ज्यादा जगहों पे, एक एक्सेप्शन है उसकी तरफ आ रहा हूं 1, इसको छोड़ दे इसकी तरफ आता हूं 1 सो ऑन। नीचे भी देखते जाए सारे 1 एक्सेप्ट दिस फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट। फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट पे हम 15% ग्रेटर लेते हैं, 1.15 टाइम्स फैक्टर लेते हैं। यानी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शेयर फोर्स, अच्छा जब हम कहते हैं ना कि हाफ 1 फैक्टर का मतलब क्या है? जब आप यहां पे 1 फैक्टर यूज करेंगे, 1 फैक्टर को यूज करने का मतलब यह है कि आप एक सपोर्ट पे हाफ लोड, दूसरे पे हाफ लोड ले रहे हैं, ऐसे ही हो जाएगा ना। WU/LN/2 on one side, WU/LN/2 on the other side। इसका मतलब है आप ये समझ रहे हैं कि इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इंटीरियर स्पैन के लिए दिस इज गुड इनफ। एक्सटीरियर स्पैन में ये मसला है कि चूंकि वहां पे डिसकंटिन्यूअस एंड की डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस की वजह से नॉर्मली जो, अच्छा अगर इक्वल होना तो वहां पे जो शेयर फोर्स डायग्राम की शेप होती है, अगर आप सपोर्ट शेयर फोर्स डायग्राम की शेप देखेंगे टिपिकल इंटीरियर के केस में, तो वो कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी आपको। ठीक है, ये इसके बाद फिर ऐसे नीचे आएगा एंड सो ऑन। यानी ये सेंटर में से पास मिड स्पैन जो लोकेशन है ना, वहां से इसका 0 शेयर वाला पॉइंट गुजर रहा होगा, इसलिए ये दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देयर मे बी सम डिफरेंस। यहाँ पे वो जो 0 पॉइंट वाला शेयर है, पॉइंट है 0 शेयर वाला पॉइंट, इट इज क्लोजर टू दी, एक सेकेंड, इट इज क्लोजर टू दी एक्सटीरियर सपोर्ट एंड दैट्स व्हाई you may have slightly bigger shear on this side compared to this side। यहां पे उसके मुकाबले में थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी अगर मैं यहां पे ज्यादा लोड ले रहा हूं तो इधर मुझे मेरा कम लोड जाना चाहिए ना, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर हम ज्यादा एक्यूरेसी की बात करें। लेकिन हम कंजर्वेटिवली इसको रिड्यूस किए बगैर इसका कोफिशिएंट फिर भी 1 ही ले रहे हैं। समझ ले कि टोटल अगर लोड 100 किप था तो हमने यहां मे बी 60 या 65 किप डाल दिया इस तरफ, और इधर 35 करने के बजाय वहां 50 रहने दिया कंजर्वेटिवली। ठीक हो गया?
दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पैटर्न लोडिंग। ये आपको समझ आ गया? तो फिर ब्रेक के बाद जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को। ये 5-1 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके अटेंडेंस ले लूं मेरा ख्याल है, क्योंकि हो सकता है आप लोग किसी को जाना हो। 1, 19, 22, 20